محکمہ ریونیو کے ریکارڈ میں مبینہ جعل سازی، کراچی کے 4 اضلاع میں سرکاری اراضی غیر قانونی طور پر دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی بلڈرز، لینڈ گریبر سمیت بااثر افراد کو الاٹ کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا کون کون سے اضلاع کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا؟ جی بالکل، محکمہ بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ میں مبینہ طور پر جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے اور اربوں روپے کی سرکاری اراضی بااثر افراد کو الاٹ کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر انکوائری و انسپیکشن ٹیم نے تحقیقات مکمل کر لی ہے، لیکن تحقیقاتی رپورٹ بااثر افراد کے دباؤ کے باعث یہ دبا دی گئی ہے۔ کراچی کے 4 اضلاع جس میں سرکاری اراضی کی جعل سازی کے ذریعے الاٹمنٹ کی گئی، جس میں کراچی کے 2 اضلاع غربی شرقی ملیر تیماڑی شامل ہے۔ یہ 4 اضلاع ہیں جہاں پر سرکاری ریکارڈ میں اور جو رد و بدل کر کے جعل سازی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے تحقیقاتی ٹیم نے ضلع غربی کی تحصیل منگو پیر میں 5500 ایکڑ اراضی پر جعل سازی کا تعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دیگر ضلع ہیں، ان میں بھی اس میں شرقی اور تیماڑی ملیر شامل ہے، وہاں بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سابق نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم نے یہ تحقیقات رپورٹ کے سال چیف سیکرٹری یا وزیر اعظم کے حوالے نہیں کیا۔ تحقیقات رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سرکاری اراضی بااثر افراد، لینڈ مافیا اور بلڈروں کو یہ زمین الاٹ کر کے سرکاری خزانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جی اچھا آزاد، یہ بھی بتائے گا کہ کتنے ایکڑ اراضی ہے اور اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جی بالکل، اس وقت صرف ایک تحصیل منگو پیر میں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہاں پر 5500 ایکڑ زمین جو اضلاع غربی میں واقع غیر قانونی طریقے سے الاٹ کی گئی۔ دیگر جو اضلاع جس میں شرقی بھی ہے، اس کے علاوہ ملیر اور تیماڑی شامل ہے، وہاں پر بھی غیر قانونی طریقے سے ہزاروں ایکڑ زمین ریکارڈ میں ہیر کر کے الاٹ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے اس زمین کی مالک مجموعی طور پر خربوں روپے ظاہر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ جو وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم ہے، انہوں نے تحقیقات مکمل کر لی ہے، لیکن تحقیقات کو تاحال وزیر اعظم یا چیف سیکرٹری کو ارسال نہیں کی گئی ہے۔ جی اچھا آزاد، یہ بھی بتائے گا کہ ملوث افراد کا بھی تعین کیا گیا ہے رپورٹ میں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ جی بالکل، اس رپورٹ میں محکمہ بورڈ آف ریونیو کے افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن اس حوالے سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو زاہد علی عباسی کو وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم کی جانب سے متعدد بار خط لکھے گئے اور کہا گیا کہ ان افسران کا جن کا زمین میں غیر قانونی طریقے سے ہیر کر کے ریکارڈ کو جو ہے مبینہ طور پر جعل سازی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی عمل لائی جائے، لیکن محکمہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم کے سامنے کسی قسم کا جو ریکارڈ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا محکمہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تحقیقات کے عمل میں تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین جو وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم میں رفیق احمد بوڑو کا ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے محکمہ بورڈ آف ریونیو کو متعدد بار آگاہ کیا گیا ہے کہ تحقیقات میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن تعاون کرنے کو محکمہ بورڈ آف ریونیو تیار نہیں ہے۔ رپورٹ تیار کر دی گئی، لیکن رپورٹ جو اس وقت بھی وزیر انکوائری انسپیکشن ٹیم کے پاس موجود ہے، لیکن بڑا حکام کو ارسال نہیں کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوریو۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کا میگا پروجیکٹ BRT ریڈ لائن منصوبہ تعطل کا شکار، 4 ماہ سے تعمیراتی کام آگے نہ بڑھنے پر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے متعلقہ اداروں کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ کوئی ٹھیکیدار منصوبے پر کام کے لیے آمادہ نہیں، لاگت 25 سے 30% بڑھنے کا امکان ہے۔ افسران کی بریفنگ ہے۔ شرجیل میمن نے تعمیراتی کام میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کے احکامات دے دیے، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ رپورٹ کر رہی ہیں آئمہ خان۔ ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنے لگا۔ BRT ریڈ لائن منصوبہ اگست 2022 میں شروع ہوا تھا، جسے اگست 2024 میں مکمل ہونا تھا، لیکن 1 سال سے منصوبہ سست روی کا شکار تھا اور اب 4 ماہ سے کام بند ہے۔ شہری کہتے ہیں منصوبے کی وجہ سے سڑک تنگ ہو گئی ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ جلد از جلد منصوبے کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک کا لوڈ بہت زیادہ ہے پیچھے سے بیک سائڈ سے، اور یہ روڈ بھی جو بہت زیادہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ جا رہا ہے، گلشن اقبال جا رہا ہے، اور یہاں رکشے والے اور بس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اور روڈ جو ہے نا ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ وہ پل کے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی گھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس روڈ پہ اتنے کھڈے کر دیے ہیں، کچھ یہ لوگ سامان لا کے رکھ دیے انہوں نے،
कुछ रोड जाम हो गया है, कुछ और लोग शहरियों के लिए और गज़ब अज़ाब बना दिया इन्होंने, जो इस तरफ काम करते हैं काम वालों के लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील ज़रूरी है। पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आइमा खान, सिटी 21। रेड लाइन पर 4 माह से तरक्याती काम बंद होने पर शहरी भी नाराज हैं। शिकवा करते हैं कि आए रोज ट्रैफिक जैम और हादसात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये BRT रेड लाइन का जो मंसूबा है ये अगस्त 2022 को शुरू हुआ था और अगस्त 2024 यानी इसी साल अगस्त को इसको मुकम्मल होना है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि ये मंसूबा इस साल मुकम्मल होगा। इसमें 1 साल की तकरीबन ताख़ीर हो चुकी है, चूँकि गुज़श्ता 4-5 महीने से तामीराती काम रुका हुआ है और 1 साल से तामीराती काम सुस्त रवी का शिकार था। अब बताया ये जा रहा है कि डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो गया, जिस वजह से ठेकेदार बोरिया बिस्तर बांध कर चला गया है यहाँ से और काम बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी कई मुश्किलात से दो चार हैं। मैं कराची के कुछ शहरियों से भी यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे बात करूँगा, क्या कहेंगे। ख़ास तौर पे ये मंसूबा इसका काम रुका हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, आप क्या कहेंगे। ये भाई से रहमत नहीं, भाई से जहमत बन गया ये। अच्छा, अभी रमज़ान से 1 महीने पहले शेख जैद के सामने एक लड़का मरा, कल भी एक बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ था और आए दिन ये एक्सीडेंट होते रहते। अब मामला ये है, इसके अंदर जो हुक्मरान शामिल है उनको सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे, ये काम जो रुका हुआ है जिस वजह से लोग परेशान हैं, क्या सूरत है। इसकी वजह से जो ना ये जो जगह जगह पे इन्होंने यूटर्न बनाए हुए हैं, उनके पास कोई सही वो नहीं बंदा बिठाया हुआ, जिसकी वजह से आने जाने वाले को हर किसी का एक्सीडेंट होता है। रोज़ाना कोई ना कोई यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से मरा हुआ होता है, किसी का क्या होता है, किसी की टांगें ज़ख्मी होती हैं। वो पुल के पास रोज़ाना कोई ना कोई गिरा हुआ होता है, क्योंकि इस रोड पे इतने खड्डे कर दिए हैं। कुछ ये लोग सामान ला के रख दिए इन्होंने, कुछ रोड जाम हो गया है, कुछ और लोग शहरियों के लिए और गज़ब अज़ाब बना दिए इन्होंने, जो इस तरफ काम करते हैं काम वालों के लिए भी मसले मसाइल बढ़ गए। कुछ शहरियों से मैंने बात की, आपने सुना कि एक तो यहाँ काम रुका हुआ है, वो एक अलग मसला है। ट्रैफिक जाम होना एक अलग अज़ाब है, लेकिन उसके अलावा यहाँ जो यू टर्न बने हुए हैं, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, जो सामान पड़ा हुआ है, उस वजह से और मसाइल से दो चार हैं शहरी, और कई मसाइल यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। लेकिन इस BRT रेड लाइन के मुकम्मल होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। जी, स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ भेज दी। स्टॉक एक्सचेंज ने बजट में टैक्स रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ दे दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या तजावीज़ दी गई हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माली साल 2024-25 बजट में टैक्स रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ दे दी है। स्टॉक एक्सचेंज बजट तजावीज़ का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना है और यहाँ पे तजावीज़ का मकसद ये भी बताया कैपिटल मार्केट के लिए साजगार टैक्स माहौल पैदा करना है। नए माली साल बजट में कैपिटल गेन टैक्स की शरहों को गैर मुनक़िद जायदाद की फरोख्त पर लागू करने की तजवीज़ दी गई है। इससे मुख्तलिफ जो है असासाजात के दरमियान टैक्स से मुतल्लिक अदम तवाज़ुन को बेहतर होगा। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में कैश सेटलमेंट के साथ फीचर कमोडिटी के मुआवजे पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में गैर मुल्की सरमाकारियों के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ पेश की गई है। गैर मुल्की सरमाकारियों की तरफ से कमाए गए सरमाया और मुनासिब छूट देने की तजवीज़ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन C65 की बहाली की तजवीज़ दी गई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा टैक्स अदम मसावत को बदतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया गया है और कॉर्पोरेट टैक्स की बुलंद शरह को भी कम करने का मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात, 7 जनरल नशिस्तों पर 17 कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। 2 ख़वातीन नशिस्तों पर 5 कागजात नामजदगी और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर 2 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। अक़लियत की 1 नशिस्त पर 3 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान और PTI के आज़ाद अरकान ने कागजात जमा कराए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि लगता है PTI के पास सियासतदानों की कमी हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हम जनरल नशिस्तों पर 9 ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि तमाम 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो। कोई भी रुकन खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है।
यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराए, इस वक्त तक अभी 12:45 हुआ है। लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं कराया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गई और कहा, मेरी बहन कुरतुलैन मरी ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वक्त गुजारा है, उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देंगी। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हूँ और कागजात नामजदगी का दूसरा और आखिरी रोज़ है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। सीएम मुराद अली शाह भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम वज़ीर यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ MNA शाजिया मरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अब आपकी बहन कुरतुलैन मरी भी जो है वो सेनेटर के इलेक्शन के लिए लड़ रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि कुरतुलैन मरी मेरी बहन है, लेकिन कुरतुलैन मरी की एक अपनी शनाख्त है और वो आखिरी यंग लड़की थी जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़ुद ट्रेन किया और उनकी रहनुमाई में उसने बिलावल हाउस में कई बरस काम किया। तो एक बहुत मैं समझती हूँ कि नायाब तजुर्बा है उसका, एक ऐसा एक्सपीरियंस है कुरतुलैन के पास जो बड़ी खुश नसीबों को ये नसीब होता है। और सेनेट के अंदर पार्टी ने पहले भी बड़ी मेहरबानी की, पार्टी लीडरशिप ने, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और हमारी अदी फरियाल साहिबा ने, ये लीडरशिप का ही जो है भरोसा है जिसकी बदौलत उसने 6 बरस सेनेट में पार्टी के फ़लसफ़े के तहत काम किया। अवामी इश्यूज़ पे वो बोली, आवाम के लिए कानून साजी उसने की, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुल्क की नुमाइंदगी उसको करने का मौका मिला। और अब एक बार फिर जब पार्टी की तरफ से इस एतमाद का इजहार कुरतुलैन के जो काबिलियत है उस पर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। और एक बार फिर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएगी और पार्टी के फ़लसफ़े के तहत, पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल, शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि आपका इनका कहना है कि नए चेहरों को भी जो है वो मौका देना चाहिए और न्यू जनरेशन, न्यू यूथ भी जो है वो इस पीपल्स पार्टी में काम करते हुए दिखाई देगी। पुराने लोग भी पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो है वो नए चेहरों को मौका दिया गया है और पीपल्स पार्टी जब भी आती है बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखाती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने कागजात जो है वो जमा करवा रहे हैं। आरओ को ये देखा जा सकता है कि अब जैसे कि टर्न आउट है 9 से 3 बजे के दरमियान, अब के वक्त जो है वो बढ़ने लगा है। उम्मीदवार यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कागजात जो है वो मंजूर करवा रहे हैं। जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की खाली करदा नशिस्त NA 207 पर आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। हल्के के अवाम से खिताब करने आसिफा भुट्टो नवाब शाह पहुँच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आज अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ, देखें, आसिफ अली ज़रदारी ने जो सीट खाली की थी नवाब शाह की NA 207, उस पर आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने अपने कागजात आज जमा करा दिए हैं। इलेक्शन के लिए उन्होंने ऐलान किया और आज वो नवाब शाह पहुँची हैं। अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने अपने कागजात भी जमा करा दिए हैं वहाँ रिटर्निंग अफसर के पास। तो अब ये पाकिस्तानी सियासत में एक नया मोड़ होगा कि आसिफा भुट्टो पहली बार पार्लियामानी सियासत में दाखिल हो रही है। कौमी असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कागजात जमा करा दी। वही नशिस्त है NA 207 जो आसिफ अली ज़रदारी ने खाली की थी। अब इस नशिस्त पर आसिफा भुट्टो ज़रदारी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पावर हाउस चौरंगी न्यू कराची के करीब शहरियों का एहतजाज। MQM पाकिस्तान के MPA रेहान अकरम की सरबराही में मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुज़ाकरात हो गए। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर नॉर्थ कराची सेक्टर 11A के जो मकीन है बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसमें खवातीन भी मौजूद हैं और सुबह 10 बजे से ये एहतजाज चल रहा है। शदीद गर्मी जो है वो है, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़े की हालत में ये इलाका मकीन जो कि सेक्टर 11A के मुख्तलिफ रिहायशी प्रोजेक्ट्स में रहते हैं, सरापा एहतजाज हैं। हाथों में इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं और अब से कुछ देर कबल जो है वो मुज़ाकराती टीम अंदर गई थी और रेहान अकरम जो कि MQM से ताल्लुक़
का ये MP हैं, इन्होंने जो है वो इन मुजाहिरीन के बिहाफ पे अंदर जो है मुज़ाकरात किए के इलेक्ट्रिक के हुकाम के साथ। रिहान साहब, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या यकीन दहानी कराई है, और ये कब तक एहतजाज ख़त्म होगा या आप भी इस एहतजाज में रहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि कराची में, पूरे कराची का हाल ये है, इस वक्त के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो सबसे बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। और लोड शेडिंग सिर्फ बिजली की नहीं है, गैस की भी शुरू हो चुकी है। तो कराची का बहुत बुरा हाल है, और हमारी कोशिश ये कि जब से हम लोग यहाँ पर जीत कर आए, हमारी कोशिश ये कि आवाम के साथ जुड़ के इन दो बड़े मसलों को पहले इसको फोकस किया हमने और इसको हल करें। आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि ज़ाहिर है ये बहुत अरसे से हमारी फ्लैट पट्टी 11A वाली है, और इसके साथ 5C3, 5C4 के भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, 4-4 दफ़ा 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो क्या करेंगे लोग? बिल्कुल, ये जो मुजाहिरीन हैं, इनका दावा है कि जो बिलिंग है वो 100% है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग की अजियत से दो चार होना पड़ रहा है। अलमिया ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर मरीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में, और बिलखुसूस बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर जो इनके फ्लैट्स हैं वहाँ पर लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें। जी। लियाकताबाद 10 नंबर की मरकजी शाहराह कई बरस से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कोई पुरसाने हाल नहीं, आर्जी तौर पर सड़क को बनाया जाता है जो हैवी ट्रैफिक के बायस टूट जाती है। मजीद बताएंगे मीर कैरियो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में। 10 नंबर का ये इलाका बकरापड़ी का इलाका कहलाता है। यहाँ पर हर वक्त जो है बकरापड़ी लगी रहती है। उसके सामने जो है ये गुजरने वाली सड़क है जो कि मेन हाईवे की तरफ भी जाती है और जो है नेशनल हाईवे की तरफ भी जाती है। उसका ये हाल है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक जमा हो जाती है। अक्सर औकात जो यहाँ पर हादसात भी होते हैं रात के औकात में, जबकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से जो है जो शहरी यहाँ के इलाका मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त इस इलाके के रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर कब से इस रोड की ये हालत है आप देख रहे हैं? भाई बरसात से पहला बारिश का पानी पड़ा और ये रोड टूट गया पूरा। इधर ज़रा सा भी पानी का छींटा पड़ जाता है रोड टूट जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरता है, बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, क्योंकि मेन हाईवे रोड जा रहा है ये। रात में भी काफ़ी लोडिंग ट्रक निकलते हैं 10 बजे के बाद से निकलना शुरू हो जाते हैं तकरीबन। तो उसमें भी इतना ट्रैफिक होता है उस टाइम पे तो कि बाइक निकलने का तो रास्ता ही नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल होती है, बाइक वाले मतलब ट्राले रास्ते ही नहीं थे बाइकों को, छोटी गाड़ियों को बड़ी मुश्किल होती है उनको निकलने में, दुश्वारी होती है। कभी बना कोई हादसा भी पेश आ जाता है। कभी बना है ये रोड? नहीं बनता है ये रोड, अभी ये इलेक्शन से पहले बना था, अब ये उसके बाद से टूटा हुआ है रोड, मगर कोई देख नहीं रहा है इसको। जी बिल्कुल, आपने जो शहरी की बातें सुनी, उनका कहना था कि यहाँ से जो है हैवी ट्रैफिक गुजरती है। रोड जो है तकरीबन महीने में 1-2 बार बनता तो है, लेकिन फिर पानी आने की वजह से, गटरों का जो सीवरेज का पानी आने की वजह से या बरसात का पानी आने की वजह से फिर जो है इसकी ये हालत हो जाती है। ताहम इनका मुतालबा है कि इस सड़क की जो है तमीर करवाई जाए, इसको हैवी ट्रैफिक के हिसाब से बनाया जाए ताकि इनका जो कारोबार भी मुतासर हो रहा है वो भी ना हो और रोज़मर्रा को जो उनको मुश्किलात का सामना है वो भी कम हो सके। जी, जुबली नाला इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक बन गया है, लेकिन इंतज़ामिया नाले पर स्लैब रखने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ नाले में मोटरसाइकिल सवार शख्स गिर गया था जिसकी जान इलाका मकीनों ने बचाई। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जुनेद जावेद। जी जुनेद, बताइएगा। देखिए जी, जुबली नाला इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक साबित होता चला जा रहा है, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची को ये जहमत नहीं है कि वो नाले के ऊपर स्लेब रख दे। माह रमज़ान चल रहा है, शाम के औकात में जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नाला और सड़क जो है इस वक्त आपको बराबर दिखाई देगा। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि नाले और सड़क के दरमियान जो है कोई एहतियाती दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर शहरी जो है मोटरसाइकिल सवार जो लोग होते हैं वो इस नाले में गिर जाते हैं। कल भी ये वाक़या रोनुमा हुआ है कि शहरी जो है यहाँ से गुजर रहा था और उसे किसी बाइक ने साइड दी है, जिसकी वजह से वो शहरी जो है इस नाले के अंदर जा गिरा है। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन उसको चोटें आई थी। ताहम इलाके के जो लोग हैं उन्होंने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को जो है वो रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। ना सिर्फ ये मुकाम बल्कि इसके अलावा अगर आप मुशामली रोड पर जाएंगे, मुशामली कचरा कुंडी के सामने जो पुलिस का जो हॉस्पिटल है उसके साथ भी ये नाला गुजर रहा है और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि नाले से स्लेब गायब हैं। लोग जो है ये यहाँ पर गिरते हैं और हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी जमा हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, कल एक वाकया हुआ था, शहरी गिरा था, क्या मामला हुआ था?
सर ये यहाँ पे जो ना थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ, बंदे एकदम आने लगे और सीधा नाले के अंदर उतर गए। यहाँ पे जो है ना बहुत परेशानी है, यहाँ कोई देखा नहीं जा रहा है किसी बारे में। बच्चे हमारे यहाँ पे खेलते रहते, डर लगा रहता है दिन जो है ना कोई नाले में नहीं गिर जाए। तो खुदारा उनसे गुजारिश है कि यहाँ के लिए कुछ करा जाए। ठीक है, बिल्कुल स्लेब लगने चाहिए यहाँ पर। ताहम बल्दिया उज़्मा कराची और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया था कि जहाँ जहाँ कराची में नाले पर सफाई होगी वहाँ पर सफाई के बाद उसको बाकायदा तौर पर ढका जाएगा, उस पर स्लेब रखे जाएंगे। लेकिन स्लेब ना होने की वजह से हादसात रोनुमा होना मामूल हो चुका है। जी, कराची समेत सूबे भर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। माली बहरान के बाद सिंध पर आटे के बहरान के बादल मंडलाने लगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली बहरान के बाइस गंदम खरीदारी का हदफ कम कर दिया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से कम करके 9 लाख मैट्रिक टन पर मुकर्रर कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर चौधरी आमिर कहते हैं कि हुकूमत गंदम खरीदारी की पॉलिसी तब्दील करे। गंदम खरीदना हुकूमत का काम नहीं। तो गवर्नमेंट को इन कामों में नहीं आना चाहिए, उनको इस काम से परे रहना चाहिए। ये टोटली काम ओपन मार्केट का हो गया है, दुनिया चेंज हो गई है बहुत। मेरा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट इस काम से हट जाए और ये काम को ओपन कर दे। ओपन फ्लावर मिलर परचेज करें, अपनी गंदम पूरे साल का स्टॉक करें, ओपन मार्केट में स्टॉक हो। अगर आपको शॉर्टफॉल लगे तो आप 1-2 महीने के लिए पोर्ट खोल दें, ऑटोमेटिकली सारी गंदम जो है बॉर्डर से निकल के मार्केट में आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में ऐसे होता है। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी का टारगेट कम करने के बाइस आटे का बदतरीन बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माजी में हुकूमत 14 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर करने के बावजूद हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आज़ाद नोहड़ियो, सिटी 21। माह सयाम में शहरियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। मज़ीद अपडेट करेंगी हमना निसार। बिल्कुल, माह सयाम के मौके पर फलाही इदारों के साथ साथ सियासी जमातें भी आवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। और इस वक्त मैं मेन नुमाइश पर तहरीक लब्बैक के बचत बाज़ार पर मौजूद हूँ। और यहाँ ना सिर्फ रमज़ान बल्कि ईद के हवाले से भी मुख्तलिफ आइटम्स रखे गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के इंतज़ामिया के शख्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मोहम्मद हुसैन साहब, आप मुझे बताइएगा तहरीक लब्बैक ने बचत बाज़ार में क्या क्या चीज़ें शामिल? तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। जो चीज़ आप चाहेंगे वो मिल जाएगी। राशन हो गया, इसके अलावा अपना गारमेंट्स हो गया, इसके अलावा फल फ्रूट हो गया, सब्ज़ी हो गया, गोश्त, मुर्गी, चिकन, हर चीज़ मतलब मौजूद मिलेगी आपको यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा, जाहिर है आप राशन, आटा, चीनी, चावल, तेल, सारी चीज़ें मौजूद हैं, कपड़े, ज्वेलरी ये भी हैं। तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा बाहर के रेट्स में और यहाँ के रेट्स में क्या फ़र्क रखा है आप लोगों ने? जी, ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। बाहर के रेट में इस वक्त आवाम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रही। जो मुतवस्सित तबका है ना वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो उस लिहाज से हमने बाज़ार की निस्बत काफ़ी रेट जो है वो कम रखे हैं, काफ़ी रेट कम है। मुझे कोई मिसाल दे के बताएं कि तेल, आटा, घी, चावल में क्या क्या रेट रखे गए, आप इधर हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि। जी ये देखें ना, आटा जो है 600 रुपये दे रहे हैं 5 किलो का, और 10 किलो का आटा जो है वो 1200 रुपये दे रहे हैं। तो ये बहुत खासा डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे तहरीक लब्बैक के इंतज़ामिया के शख्स मौजूद थे, मोहम्मद हुसैन साहब। उन्होंने बताया कि यहाँ बचत बाज़ार में तहरीक लब्बैक की जानिब से जो लगाया गया है उससे ज़रूरती ज़िंदगी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही मुनासिब कीमतों पे, बल्कि बाहर के मुकाबले में यहाँ पर एक मुनासिब कीमत पे दस्तयाब है। ना सिर्फ रमज़ान के हवाले से बल्कि यहाँ पर ईद के हवाले से भी सारी तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं, जिसके जो भी मुतवासित तबका है वो यहाँ पर ईद की शॉपिंग भी आकर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मर्द और ख़वातीन और बच्चे सबकी यहाँ पर कपड़े, जूते और बाकी ज्वेलरी आइटम्स भी मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सालाना मेंबरशिप की तजदीद का अमल जारी है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखते हैं। सबसे बड़े कराची चैम्बर में मेंबरान की तजदीद जारी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मेंबरान की सहूलत के लिए पहली बार बैंक काउंटर कायम कर दिया गया। चैम्बर के नायब सदर तनवीर अहमद का कहना है कि कराची चैम्बर के 26,000 से ज्यादा मेंबरान हैं। तमाम अफराद 31 मार्च तक अपनी मेंबरशिप की तजदीद करा सकते हैं। आखिरी तारीख जो है 31 मार्च है
اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے تجدید کرا رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنی تجدید نہیں کرائی تو وہ جو ہے ووٹنگ رائٹ سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور جو چیمبر کی جو ان کو سہولیات ہیں, جو دوسری سہولیات ملتی ہیں, ویزا ریکمنڈیشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو میری لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ٹائملی جو ہے اپنی جو ہے تجدید کرا لیں. رمضان المبارک میں کراچی چیمبر میں صبح 9:30 بجے سے دن 3 بجے تک ممبران سہولت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. 31 مارچ تک ممبر شپ کی تجدید نہ کرانے والوں کی ممبر شپ معطل کر دی جائے گی. کیمرہ مین اجنان چھپا کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21.